Students, today I am talking about preamble because it is one of the most important feature of our Indian Constitution. Preamble actually is an introductory part of the Indian Constitution which contains the philosophy on which the entire constitution has been built. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. In fact, preamble is the soul of the Indian Constitution, which determines the objectives and philosophy of our Constitution. See, it is the preamble which mentions our country is a sovereign, socialist, secular, democratic republic and tends to provide all the citizens justice, equality and fraternity. Let's talk about all these terms one by one. Sovereign. If you read the preamble, it's clearly written that we, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हम भारत के वासी अपने भारत को सर्वम संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रीय गणराज्य बनाते हैं. So what is the meaning of this sovereign? First of all, let's talk about the very first term, sovereign. See, sovereign derives from the Latin word sovereignus, which means supreme authority. Okay, it means supreme authority. So sovereignty means if a state is a supreme authority within the defined territorial area. मतलब अपने आप में स्टेट के पास सारा पावर है और कोई दूसरा देश है ना हमारे देश के पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, हमारे देश को कंट्रोल नहीं कर सकता. बिकॉज एट वन टाइम यू ऑल नो दैट आवर कंट्रीज सिस्टम was controlled and dominated by a foreign country, but now our country has become sovereign. It has become free internally as well as externally. See here, sovereignty has two aspects: internal sovereignty and external sovereignty. External means that the state conduct its own affair without any interference of other state. मतलब अब दूसरा देश हमारे देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता है. नाउ आवर कंट्री इज हैविंग एक्सटर्नल सॉवरेनिटी. एंड इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब क्या हो रहा है? इट मीन्स दैट स्टेट हैज सुप्रीमेसी अथॉरिटी ओवर ऑल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन विद इन इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री. अब हमारे देश की सरकार के पास सारा अथॉरिटी है, वो अपने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, कानून बना सकता है, पॉलिसी बना सकता है ना, इलेक्शन करवा के सरकार को बनवा सकता है. तो नाउ वी आर हैविंग कंप्लीट freedom, rights, enjoying in our own country. So this is the meaning of internal and external sovereignty. So our country has become, India has become a sovereign state on 26th January 1950, the day in which our constitution was implemented. Okay. So sovereignty means people have supreme right to make decision on internal as well as external matter. No external power. Okay, no external power, no foreign power can dictate the government of India now. So by sovereignty, India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. अब हमारा स्टेट, अब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट है. It is free to conduct its own affair both internally as well as externally. तो क्या सॉवरेन स्टेट बनने के बाद हम कोई फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज. तो हम लोग आज़ाद होने के बाद 1950 के बाद हम लोगों ने अपने ही देश के गोवा को हम लोगों ने कैप्चर किया, एक्वायर किया, पुडुचेरी को एक्वायर किया, सिक्किम को एक्वायर किया, क्योंकि हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी ये 3 स्टेट जो थे ना इंडिपेंडेंट नहीं थे. तो आज़ादी के बाद जब हम लोग सॉवरेनिटी हम लोग सॉवरेन कंट्री हम लोग बने, तो उसके बाद हम लोगों ने वी हैव एक्वायर्ड द टेरिटरी ऑफ गोवा, पुडुचेरी, दैट टाइम इट वाज नोन एज पौंडीचेरी एंड सिक्किम इन 1975.
And after becoming sovereign country, India has become a part of several organizations. India became the member of UNO in 1945, and in 1949 India declared the continuation of the membership of Commonwealth of Nation. Commonwealth of Nation का भी member India 1949 में बना. Now let's talk about democracy. India is a democratic country. It's being mentioned in the preamble. We, the people of India, resolves to constitute it into sovereign, secular, socialist, democratic, and republic. Democracy comes from the Greek word, okay, demos plus क्रेशिया, okay, ये दोनों शब्द से मिलकर डेमोक्रेसी बना है. देखिए आप यहाँ पे, डेमोस मीन्स पीपुल एंड क्रेशिया मीन्स रूल. सो लिटरली डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपुल. Okay, so that means कि democracy is the system where the people rule over the country, either directly or through their representatives. या तो people डायरेक्ट रूल करते हैं, अब तो डायरेक्ट रूल नहीं करते हैं, अब तो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव्स सरकार बना के हमारी तरफ से रूल करते हैं. लेकिन एट वन टाइम है ना, देयर वाज डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो. तो व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? सी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स हेयर पीपुल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन पॉलिसी मेकिंग. यहाँ डायरेक्टली लोग जो है ना रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरे देश को विदाउट एनी गवर्नमेंट, और पूरा डिसीजन मेकिंग ये सारे लोग मिल के लेते हैं. और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट टेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. तो अभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ स्विट्जरलैंड में, क्योंकि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है तो सारे लोग मिल के वहाँ पे सिस्टम को चलाते हैं. हमारे देश में इतनी आबादी है कि सारे लोग मिल के देश नहीं चला सकते, इसलिए हम लोग कुछ लोगों को चुनते हैं, वही कुछ लोग जो है सरकार बनाते हैं और हमारे तरफ से रूल करते हैं. दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, वेयर वी आर इनडायरेक्टली रूलिंग ओवर द कंट्री थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. सो मोनार्की और रिपब्लिक में क्या फ़र्क होता है? मोनार्की पहले राजा रानी वाले स्टेट थे, है ना, कंट्री में राजा रूल करता था. दैट वाज नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज ही वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. नाउ आवर कंट्री हैज बिकम रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. इन आवर कंट्री हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? इन आवर कंट्री द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट. The president is elected by the people, and those countries where the head of the state is elected by the people, that country is called as a republic country. So in our country, the head of the state, that is the president, is elected by the people. So our country is a republic country. So there is a difference between monarchical system and republican system. Monarchy means the head of the state comes into office through succession. राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा. देयर इज नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन मोनार्किकल सिस्टम, बट इन रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी हेरिडिटरी सक्सेशन. So we have discussed about the sovereign, democratic and republic. Now two new terms were added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment 1976. तो प्रियम्बल में पहले क्या था? सिर्फ 3 टर्म थे, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन एंड रिपब्लिक. 2 टर्म को बाद में ऐड किया गया. ये 2 टर्म कौन थे? सोशलिस्ट और सेकुलर, है ना. दीज 2 टर्म्स वर एडेड टू आवर प्रियम्बल इन 1976 थ्रू 42nd Constitutional Amendment Act. So what do you mean by socialist and secular, and what was the need of adding these terms to the preamble? See, देखिए सोशलिस्ट को हम आपको बताते हैं. इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जहाँ पे जो कंट्री में जो बिजनेस हो रहे हैं, है ना, जहाँ पे बिजनेस होते हैं, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल सिस्टम है, वो सब को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम. तो इकोनॉमिक सिस्टम 2 तरह का होता है, एक है कैपिटलिस्ट सिस्टम और दूसरा है सोशलिस्ट सिस्टम. लेट्स टॉक अबाउट कैपिटलिस्टिक सिस्टम. इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स आर कंट्रोल बाय द प्राइवेट. सब चीज़ प्राइवेट का होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है. ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑल द फैक्ट्रीज, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल बाय द प्राइवेट ओनर्स. It is the private owners who decide what to produce, how much to produce, all decided by the individuals who own the company, not by the government. सरकारी नहीं होता है, सब चीज़ प्राइवेट. किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कैपिटलिस्टिक सिस्टम की. ठीक है, तो
यहाँ पे सारी चीज़ें प्राइवेट के कंट्रोल में होता है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, सब प्राइवेट इंडिविजुअल से डिसाइड करते हैं, सरकार डिसाइड नहीं करती है कैपिटलिस्टिक में, है ना। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जो कंपनी ज़्यादा पावरफुल होती है वो कम्पीट कर जाती है, और जो कंपनी जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है, कमज़ोर होती है, वो मार्केट से आउट हो जाती है। यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन होता है, गला काट प्रतिस्पर्धा। मतलब अगर आप प्रॉस्पेरस है, आपके पास पैसा है, तो आप खूब राइज करोगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो दैट इज वाई इन अ कैपिटलिस्टिक सिस्टम वी फाइंड अ ग्रेट डिफरेंसेस, we find a great economic disparity. Some persons are very rich, some persons are very poor. कोई भी चीज़ सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सरकार के कंट्रोल में रहने से क्या होता है कि सरकार उसको इस तरह से ऑपरेट करती है जिससे सबका फायदा हो, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल तो सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, समाज का फायदा तो वो देखते नहीं है। तो कैपिटलिस्टिक सिस्टम इज ओनली कंसर्न विद द प्राइवेट प्रॉफिट, नॉट द पब्लिक प्रॉफिट। ठीक है। तो पीपल प्रेफर द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी विच प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट एट लेस प्राइसेस, कंपनी विच सक्सीड इन मीटिंग द डिमांड। तो जो कंपनी पब्लिक के डिमांड को फुलफिल करती है वो प्रॉस्पर करती है, और जो फुलफिल नहीं कर पाती है वो मार्केट से आउट हो जाती है कैपिटलिस्टिक सिस्टम में, जैसे अमेरिका में है। और कैपिटलिस्टिक सिस्टम को हम लोग मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी भी कहते हैं, जो पूरा मार्केट फोर्सेस से चलता है, डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। तो हमारे देश को कैपिटलिस्टिक सिस्टम नहीं बनाया गया, कैपिटलिज्म यहाँ पे नहीं आया। ठीक है। हम लोगों ने सोशलिस्ट सिस्टम को अपनाया, सोशलिस्ट सिस्टम को अपनाया। सोशलिस्ट सिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे सरकार का कंट्रोल होता है ना। सोशलिस्ट सिस्टम का मतलब वेयर ऑल द मीन्स एंड प्रोडक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। और सरकार कंट्रोल इस तरह से करती है जिससे सबको फायदा होता है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम की तरह नहीं। कुछ लोग प्रॉस्पर कर रहे हैं, बाकी लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो सोशलिज्म जो है हम लोग में, सोशलिज्म को हम लोगों ने इसीलिए अपनाया कि कुछ इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगी, और गवर्नमेंट उसको इस तरह से ऑपरेट करेगी जिससे सबको फायदा हो। तो सोशलिज्म बहुत तरह के होते हैं। एक मार्क्सियन सोशलिज्म है जिसके बारे में यू विल स्टडी अबाउट इन क्लास 9। एक गांधीयन सोशलिज्म है। तो हम लोगों ने गांधीयन सोशलिज्म को प्रेफर किया। Gandhi ji believed in self-sufficient village republics. He believed that village should be self-dependent economically and politically, and all resources of the village should be jointly owned, and everyone should provide labor as per capacity. गांधी जी का सोशलिज्म अलग था। वो चाहते थे गांव जो है वो आत्मनिर्भर बने, सब लोग मिलजुल के काम करें, सरकार के कंट्रोल में हर चीज़ रहे ताकि सबको बराबर उसका बेनिफिट सबको मिलते रहे। तो हम लोग गांधीयन सोशलिज्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम को हम लोग प्रेफर नहीं करें, कैपिटलिज्म भी है हमारे इकोनॉमी में और सोशलिज्म भी है। सम इंडस्ट्रीज आर कंट्रोल बाय द प्राइवेट ओनर्स एंड सम इंडस्ट्रीज आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सो आवर कंट्री इज फॉलोइंग व्हाट? आवर कंट्री इज फॉलोइंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इट इज नाइदर एब्सोल्यूट कैपिटलिस्ट नॉर एब्सोल्यूट सोशलिस्ट। ओके, इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। दैट मीन्स कि आवर कंट्री is an amalgamation of both the economic system, capitalistic as well as socialistic, है ना। In 1983 Supreme Court has declared that Indian socialism is a mix of Marxist socialism and Gandhian socialism. Marxist socialism क्या होता है ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, you will study about it in detail in class 9. गांधीयन सोशलिज्म के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि गांधीयन सोशलिज्म है जो विलेज पे ज़्यादा ध्यान देती है, और गांधीयन सोशलिज्म कहता है कि ज़्यादातर चीज़ सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए। सरकार के कंट्रोल में रहेगी तो सरकार उसको सही तरीके से ऑपरेट करेगी, इस तरह से ऑपरेट करेगी जिससे सबका फ़ायदा हो, एक का फ़ायदा नहीं हो, सबका फ़ायदा हो। दैट विल क्रिएट इकोनॉमिक इक्वालिटी इन अ कंट्री। सो इंडियन सोशलिज्म लीन हेवली ऑन गांधीयन सोशलिज्म। ओके। So why we adopted Gandhian socialism, which is also known as democratic socialism? Because it aims to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity. गरीबी, बदहाली, बीमारी और असमानता को दूर करने के लिए हम लोगों ने गांधीयन सोशलिज्म को अडॉप्ट किया। Now secularism. India is a secular word was also added. Secular means citizens have complete freedom to follow any religion. Okay, secular country means the country where citizens have complete freedom to follow any religion and state has no official religion.
स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। एंड द गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। तो हमारा देश सेकुलर कंट्री है, भले यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशंस ज़्यादा है, उसके बाद भी इंडिया को हिंदू कंट्री नहीं बनाया गया। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री वेयर ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वालिटी। एंड टुडे इन द वर्ल्ड देयर इज नो हिंदू स्टेट। नेपाल एट वन टाइम वाज अ हिंदू स्टेट, but after 2007 Nepal also became a democratic country. So there are Islamic states, there are Buddhist state, but there are no Hindu state. India is a secular state where there is no national religion and where all the peoples are treated on the ground of, the people belonging to all the faith are treated on the ground of equality. तो देयर इज नो स्टेट रिलीजन ऑफ आवर कंट्री। देखिए यहाँ पे है 3 तरह के स्टेट होते हैं, एक होता है एथिस्टिक स्टेट, एक होता है थियोक्रेटिक स्टेट, एक होता है सेकुलर स्टेट। एथिस्टिक स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पे कोई धर्म को फॉलो नहीं किया जाता है। नो रिलीजियस एक्टिविटीज आर अलाउड इन एथिस्टिक स्टेट। जैसे कौन है एथिस्टिक स्टेट अभी पता है आपको? जैसे अभी आपका है चाइना को आप एथिस्टिक स्टेट कह सकते हो, आप नॉर्थ कोरिया को एथिस्टिक स्टेट कह सकते हो। कोई धर्म वरम से कोई मतलब नहीं है उसको। थियोक्रेटिक स्टेट उस स्टेट को बोलते हैं जहाँ पे एक रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उसको राज धर्म माना जाता है। वेयर द कंट्री हैज इट्स ओन स्टेट रिलीजन, जिसका अपना स्टेट रिलीजन होता है, वो अपने एक रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। जैसे पाकिस्तान इज अ इस्लामिक स्टेट विच गिव मोर प्रेफरेंस टू इस्लाम रिलीजन। श्रीलंका इज अ बुद्धिस्ट स्टेट which gives more preference to Buddhism. Afghanistan is also an Islamic state. Bangladesh is also an Islamic state which stress more on the religion of Islam. But India has no state religion. इंडिया का कोई भी अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इंडिया किस रिलीजन को स्ट्रेस देता है, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है इंडिया? पता है आपको? किसी भी धर्म को नहीं, सबको धर्म को बराबर वो मानता है। इसीलिए जो कंट्री the country which treats all the religions on the ground of equality, that country is called as a secular country. Yes, India is a best example of a secular country. Theocratic states are those which put stress on one particular religion, and atheistic states are those who do not consider any religion. So these are the 3 different types of the state on the basis of the conduct of religious affairs. Okay, atheistic states, theocratic states and secular state. So India is what? India is not a atheistic state, India is not a theocratic state, India is a secular state. Okay, so why we have added secular and socialism to our preamble? Because of the directive principle of state policies. है ना, these directive principle of state policy provide the socialistic nature to our constitution. So because of the directive principle of state policy we have added secular and socialist term to our constitution. Now what is the directive principle of state policy? I will discuss it in my next PowerPoint presentation. Okay, so we will all discuss about the fundamental rights in the next PPT. So you should know right now, you should only know that originally our preamble consisted of 3 terms: democracy, republics and sovereign, and the 2 terms socialist and secular were added to the preamble by 42nd amendment in 1976. Okay, so secular means that there is no discrimination in our country on the basis of religion, and socialism means where the government controls certain means of production in order to reduce economic inequality, in order to alleviate the poverty of the people, as well as to create egalitarian society in a country. Okay students, so that's all about the preamble. It's a very important feature of our Indian constitution, which mention that constitution derives its authority from the people. It declares India to be a sovereign, secular, socialist, democratic republic. It also clarifies the objective of the Indian constitution, that its objective is to provide justice, liberty, equality to the people. And if you read the last line of the preamble, in preamble it is also mentioned in which
day our constitution was adopted. It's clearly written that in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Means that our Indian constitution was adopted on 26th November 1949. That's why every year on 26th November we celebrate which day in our country? We celebrate Constitution Day in our country. Okay students, thank you.